Hello Virgo, how are you doing? Welcome to my reading. Well, it's a reading regarding your love and relationship sector, regarding your work and money sector, which means job, business, career, finances, and at last we'll see the health sector. Health sector मैंने last में रखा है because everything is a psychosomatic. Our health is all about psychosomatic. All diseases are based on psychosomatic issues, you know. अगर psychosomatic पता नहीं है तो please Google करके जान ले. You will get to know what I am talking of, you know. Basically mind से, thought से. Details अगर और जानना चाहते हैं तो अपना knowledge बढ़ाइए, study कर ले Google के जरिए. You will get to know the answers. Okay, fine. So पहले देखेंगे at first I'll be checking out what is the most influential energy working in your life, Virgo. What is the most influential energy working in your life? Okay, now this is a general reading, collective reading, Virgo. Please keep this in mind. So certain things might resonate, certain things might not resonate, certain things might resonate with some group of Virgos, some different energies might resonate with some different group of Virgos. ऐसा ही होता है, ऐसा ही natural है. Okay, this is what is natural and obvious. Universe, please show the highest influential energy working in Virgo's life in current situation. What is the highest influential energy affecting Virgo's life in their current situation? Okay. Virgo, आप किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट है. अब ये कुछ भी एरिया, कुछ भी सेक्टर हो सकता है. एक एक वर्गो के लिए एक एक सेक्टर हो सकता है क्योंकि सबका बर्थ चार्ट, एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट अलग अलग है. सो वैरी तो करेगा ही. किसी का लव सेक्टर में हो सकता है, किसी का वर्क एंड मनी, किसी का हेल्थ वगैरह वगैरह, यू नो. सो एनीवेज, जो मैं कहना चाहती हूँ, आप कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत बेचैन है. बहुत क्यूरियस हैं. दो कार्ड्स, माय गुडनेस. सो हाईली 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 आपके अंदर क्यूरियस एनर्जी काम कर रहा है. यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट समवन or about some issue, about some situation. You want to gain some kind of a knowledge. किसी इंसान के लिए हो सकता है कि आप ऑनलाइन स्टॉक कर रहे, या फिर कुछ भी वजह हो सकता है. एनीथिंग. किसी जॉब के लिए हो सकता है, बहुत ज्यादा आप नॉलेज गेन कर रहे हैं. ऑनलाइन भी हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है. कुछ ऐसा चीज है जो आप बहुत क्यूरियस है, जिसको लेके आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं उस बारे में. चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई वो और वजह हो, बहुत ज्यादा क्यूरियस है. आपके कॉन्शियस में भी वही एनर्जी है, आपके सबकॉन्शियस में भी वही एनर्जी है. सो यू आर वेरी वेरी क्यूरियस. You're eager to learn and uncover new truths. You want to explore that particular field, that particular idea of yours. But don't forget to balance your enthusiasm, क्योंकि इंसान जब बहुत ज्यादा enthusiastic हो जाता है तो बैलेंस खो बैठता है, अकल खो बैठता है. सो उसे खोने मत दीजिए, क्योंकि पेज का दो कार्ड है. पेज का एनर्जी बहुत चाइल्डिश एनर्जी होता है, उतना मैच्योर एनर्जी नहीं होता है. सो बी वाइज बिफोर deciding upon anything.
ओके, बी थॉटफुल, रिफ्लेक्ट कीजिए उस काम को करने से पहले, सोच लीजिए, सोच विचार कर लीजिए. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. A spark of curiosity is urging you to explore new ideas and directions. You want to discover something, as if you want to learn deeply about something. You want to grow in that particular field with the help of your knowledge. नॉलेज गेन करना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे काम के लिए होना चाहिए, अच्छे वजह के लिए होना चाहिए. Now I'll be checking on the individual categories. First, I'll be checking the card, checking the energy for your love and relationship sector. ये लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर कोई भी इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ लाइफ हो सकता है, चाहे वो लवर हो, स्पाउस हो, फैमिली मेंबर्स हो, कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, यू नो, एनीबडी जो अभी आपके करंट सिचुएशन में फिलहाल इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है in terms of love and relationship. Please show the card, universe. Please show that particular energy for Virgo's love and relationship sector. Okay. Now I'll move on to your work and money sector. Please show the card and energy of Virgo's work and money sector. Virgo's work and money sector. Please show the card for Virgo's work and money sector. That is job, business, career, finances. Okay. Now the third category is health sector. Please show the card for Virgo's health sector, universe. Please show the card for Virgo's health sector. Please show the card for Virgo's health sector. At last we'll see the guidance, universal guidance की universe और क्या कहना चाहता है in terms of guidance. फिर से पेज का कार्ड. You're trying to be quite immature in certain areas of your life, and that is what you need to change, Virgo. You need to be mature enough. यही immaturity and maturity का, immaturity को maturity में बदलना है आपको. यही आपका ओवरऑल एनर्जी हो रहा है, भले ही वो लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर हो, भले ही वो वर्क एंड मनी लाइफ हो, भले ही वो हेल्थ सेक्टर हो. देखते हैं इंडिविजुअली डिटेल्स और क्या आया है. ओके. Well, talking about your love and relationship sector, it seems you want to have some kind of a mental clarity pertaining to a particular person in your life. Could be a lover, could be your spouse, could be friends, colleagues, family members, or any other important person in your life currently. Could be a friend, Virgo. आप क्लैरिटी चाहते हैं उस फील्ड में, यू नो, और आपको क्लैरिटी मिलेगी, और इसीलिए क्लैरिटी चाहते हैं, इसीलिए आप इतना छानबीन कर रहे, इतना क्यूरियस हैं उस इंसान के बारे में जानने को, चाहे वो सिचुएशन के बारे में जानने को, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, वगैरह वगैरह, किस टाइप का इंसान है. बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर इंसान को लेके या फिर उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, एज इफ यू आर रिसर्चिंग ऑन दैट डीपली. मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप परप्लेक्स्ड हैं कहीं
उस बात को लेके, in terms of love and relationship. You want to communicate with that person, particular person. Clarity कैसे लाना चाहते हैं वो भी communicate करके लाना चाहते हैं. सब कुछ जानने के बाद आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं उस इंसान से, बात करके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं. You want to initiate, maybe you want to initiate the communication between the two of you. You want to clarify things out. You want to talk. So आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप सेक्टर में ये एनर्जी दिख रहा है. मूविंग ऑन टू योर कम्युनिकेशन का आप इनिशिएट करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, या फिर उस बारे में जो भी वो चीज़ है, सब्जेक्ट है, टॉपिक है जिसके बारे में आप इतना नॉलेज गैदर कर रहे हैं वर्गो. Okay, now moving on to your work and money sector, that is job, business, career, finances. You will be reaching your financial goals. That is what you're looking for. हो सकता है कुछ Virgos, you know, कैसे अपने स्टेबल को इनकम करे. सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. कैसे अपने इनकम को स्टेबल करे. सॉरी. कैसे अपने इनकम को स्टेबल करे, कैसे अपने सोर्स ऑफ इनकम को स्टेबल करे, कौन सा सोर्स और अच्छा होगा मेरे लिए, ये सब बारे में हो सकता है कुछ वर्गोस छानबीन कर रहे हैं, क्यूरियस है, नॉलेज गैदर कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यू नो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे अदरवाइज हो. You want to reach to that particular goal of yours, जो फाइनेंशियल गोल आपने कुछ ऐसा गोल सेट किया है कि ऐसा कुछ टारगेट आपको अचीव करना है, उस टारगेट तक आप पहुंचना चाहते हैं, उस ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं जो कि फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, वर्क वाइज भी हो सकता है. अपने जॉब लेवल को, बिजनेस लेवल को और उम्दा करना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं. यू नो, यू वांट टू हैव दैट एंजॉयमेंट इन योर वर्क लाइफ. में भी अभी जो फिलहाल काम कर रहे, फिलहाल शायद उतना यू नो एंजॉय नहीं कर रहे अपने काम को. हाँ, करना है, करते हैं. हो सकता है इस टाइप का एनर्जी फिलहाल काम कर रहे हैं, तो आप अभी वो नहीं चाहते हैं, आप चेंज चाहते हैं. यू वांट टू लव योर वर्क. You want to do only that kind of work which gives you mental or emotional satisfaction. Okay, you're getting my point. You want to have all the luxuries through your work, through your money, all the luxuries in your life. And the energy is favorable, it will favor you. जॉब में हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, लेवल आपका बढ़े, उन्नति करे आप, और इनकम हो सकता है जो अब तक अनस्टेबल था वो और स्टेबल हो, स्टेबिलिटी बढ़े, उसमें आ जाए सोर्स ऑफ इनकम जो भी हो, या फिर सोर्स ऑफ इनकम चेंज भी हो सकता है. अब तक जो सोर्स ऑफ इनकम आपके जीवन में चल रहा था वो शायद उतना स्टेबल नहीं था, फ्लक्चुएट कर रहा था, अप डाउन हो रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था, या फिर आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं थे जो पैसा आपको मिल रहा था सोर्स ऑफ इनकम से, यू नो, सफिशिएंट नहीं था. लेकिन आप लग्जूरियस लाइफस्टाइल चाहते हैं, एटलीस्ट जिसमें आप मेंटली सेटिस्फाइड हो, ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हैं आप.
तो ये एनर्जी आपको फेवर कर रहा है। आप इस बारे में सोच के उस हिसाब से आगे बढ़िए, क्योंकि आपके थॉट्स में भी ये सब चल रहा है, और नहीं चला है तो ये आगे थॉट्स में आएगा, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में ही है। Which is good enough. It's a positive card. Okay, so moving on to the health sector of your life, Virgos. Okay, देखते हैं आपका हेल्थ सेक्टर क्या कहता है। आप बहुत ज्यादा प्लानिंग कर रहे हैं ना, इस वजह से बुरा, ऑब्वियसली हेल्थ के बारे में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, इतना प्लानिंग रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिलेशनशिप भी आप कम्युनिकेट करके, क्लियर करके बातचीत करना चाहते हैं। कोई पर्टिकुलर इंसान है आपकी लाइफ में ऐसा। वर्क लाइफ में भी आप सोच विचार कर रहे हैं कैसे अपने इनकम को और दुगना किया जाए, स्टेबल किया जाए, पोजीशन को, स्टेटस को और कैसे बढ़ाया जाए, लाइफस्टाइल और उम्दा कैसे किया जाए। हो सकता है आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हो सकता है आप एक घर खरीदना चाहते हैं। ये सब ख्यालात आपके मन में, आपके विशेस में है, जो आप फुलफिल करना चाहते हैं। तो एनर्जी फेवरेबल है, ये पॉसिबल हो सकता है। आप प्लीज वर्क करें इसके ऊपर। हो सकता है इसीलिए आप ऑनलाइन शायद बहुत घर ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छा मकान, अच्छा घर, अच्छे लोकेशन में। गाड़ी हो सकता है, गाड़ी के बारे में शायद आप बहुत रिसर्च कर रहे हैं, क्यूरियस है, क्योंकि मेन एनर्जी आपका एक्सप्लोरेशन का ही आया है। यू आर वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट समथिंग इन योर लाइफ, और ये समथिंग वर्गो टू वर्गो ऑब्वियसली वेरी करेगा। सो हेल्थ अदरवाइज ठीक ही है, बस बैलेंस रखिए। एनर्जीज अप डाउन हो सकता है, इतना ज्यादा ओवरथिंकिंग या फिर इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी में आप इतना ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गए, यू हैव बिकम सो मच एंथुजियास्टिक अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर लाइफ, ऑब्सेस्ड हो जा रहे हैं आप। ऑब्सेशन इज सर्टेनली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू look after as far as your health is concerned. Stability, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ऐसा कुछ चल रहा है आपके हेल्थ को लेके। कुछ अप डाउन फ्लक्चुएशन दिख रहा है। तो इस चीज को स्टेबल कीजिए। डोंट टेक गुड हेल्थ फॉर ग्रांटेड। मैंने पहले ही कहा, हेल्थ को लेके मैं इतना कुछ नेगेटिव फैक्टर्स नहीं देख रही हूं, पर फिर भी गुड हेल्थ है तो इसका मतलब ये नहीं है टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो बात बिगड़ जाएगा। सो कीप योर एंथू इन कंट्रोल। ओवरवेलमिंग सिचुएशन में मत रहिए। बी केयरफुल, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। अदरवाइज आपका हेल्थ मैं ठीक ही देख रही हूं। नाउ दिस इज अ जनरल रीडिंग अगेन फॉर ऑल द वर्गोस। सर्टेनली इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, एनर्जीज मिसमैच हो सकता है, किसी के साथ एग्जैक्टली डिट्टो मैच करे, किसी के साथ हो सकता है कुछ चीजें मैच करे, किसी के साथ हो सकता है कुछ भी ना मैच करे। इट्स हाईली पॉसिबल। That is how things are, because it's a general reading, collective reading for all the Virgos. सबका astrological birth chart एक जैसा नहीं होगा। Okay, please keep that in mind. Okay, so tame your curiosity, don't overdo it, नहीं तो इसका हेल्थ पे आपका
असर पड़ सकता है। अपने हेल्थ एनर्जीज को बैलेंस रखिए। क्योंकि आप बहुत ज्यादा अभी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा मेंटली बॉग डाउन मत हो जाइए प्लान करते करते कि उसका उल्टा असर हेल्थ पे ही पड़ जाए, बाकी सब फैक्टर्स के वजह से। इसीलिए मैंने हेल्थ का कार्ड लास्ट में रखा है, ताकि पता चले कि लाइफ में क्या हो रहा है। क्योंकि हेल्थ हमारा लाइफ के इन्हीं चीजों से बिगड़ता है ना। सो दैट्स द रीजन। एवरीथिंग इज साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक वर्ड अगर पता ना हो तो प्लीज गूगल करके जान ले, आपको पता चल जाएगा। ओके So balance it out. Try to maintain a proper balance within your energies, mind, body, spirit. Otherwise, health आपका ठीक ही रहेगा. Okay, so thank you so much. Okay, I'm so sorry. Guidance card रह गया last. Let's see, universe और क्या guide करना चाहता है आपको. Please show the guidance card for Virgo, universe. What is the guidance card for Virgo? Please show the guidance card for Virgo. What's the guidance card for Virgo? देखते हैं. Passion. इसी क्यूरियोसिटी की वजह से आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो जा रहे, यू नो. सो अच्छी बात है पैशनेट होना अच्छी बात है, लेकिन टेम्ड वे रखिए उसे, कंट्रोल वे में रखिए, ओवरली नहीं. जो भी हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, रिलेशनशिप एरिया हो, वर्क लाइफ हो, मनी लाइफ हो, हेल्थ सेक्टर हो, अपने पैशन को कंट्रोल्ड वे में रखिए. पैशन होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉट इन एन ओवरवेलमिंग वे. तब इसका असर उल्टा पड़ सकता है. You're having that passion for all the things that you're doing in your life, Virgo. Very good. Universe is asking you to have that passion, be it in your relationship, be it in your work and money area. क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे दिख रहा है, लव लाइफ हो तो आप पैशनेटली कम्युनिकेट करके चीज को क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बहुत जुनून सवार है आप पे, बहुत क्यूरियस है, हाई हाई क्यूरियस एनर्जी. लेकिन टेम्ड वे में रखिए, कंट्रोल्ड वे में रखिए. होशो हवास मत खो बैठिए इस क्यूरियोसिटी के पीछे. लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, मटेरियल सक्सेस चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप बहुत पैशनेट हैं, लेकिन उस पैशन को कंट्रोल्ड वे में रखिए. स्टेबिलिटी स्टेबल वे में रखिए. हाथ से निकल ना जाए, आउट ऑफ हैंड ना हो जाए, इतना ज्यादा पैशन ना बढ़ जाए कि कंट्रोल ही ना कर पाया. इस बारे में सोचिए, या फिर ऐसे सोचिए. थिंक इन दैट मैनर. बी पैशनेट, बट डोंट लेट इट ओवररूल यू. नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी. ओके, सो दिस वाज all about your reading, Virgo, in terms of all the areas of your life. So I wish you all the very best in your life's journey.
I'll see you in my next reading. Till then, take care. Bye bye. See you soon.